Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the new topic. Previously we have discussed about sp3 hybridization. Today we are going to start with sp2 hybridization. We will inshallah try to complete hybridization topic, and if we will be having a time, so we will definitely try to start MOT also. So let's we start with the hybridization first, that what hybridization is. Initially we have discussed about sp3 hybridization. Today we are going to start with the sp2 hybridization and sp hybridization. In the previous lecture I have discussed that sp, whenever we are talking about any of the hybridization, whether it is sp2 or sp3 or sp, so it totally depend upon the orbitals which are present. For example, if we are talking about sp2 hybridization, so there is one s and two p orbitals involved, and these two orbital, how they are going to get mixed, one s orbital and two p orbital, like this two p orbital will get mixed with each other and will form three sp2 hybridized orbitals. Fine. So this is the hybridization concept. What hybridization concept is, in which orbital get mixed, and their energy, they just form the from different forms of the orbitals, they form the same shapes of the they form same shape and same energy orbitals. This is the concept of hybridization. So if we are talking about sp2 hybridization, so in this also it is explained that one s and two p orbitals fuse together to form three sp2 hybridized orbital. And what is the meaning of 3 sp2 hybridized orbital? Because there is one s and two p orbitals are involved. So if three orbitals are getting mixed, so definitely they will form 3 sp2 hybridized orbital. The energy of hybrid orbital is always lower than that of the unhybridized orbital. What is the meaning of unhybridized orbital? Unhybridized orbital are those orbital which are in original form, and hybridized orbital will form the shape like this. Fine. So they have maximum energy and they have minimum energy. This the point. इसका मतलब ये है, they produce sp2 hybridized orbital, and they will have a 33.33% s character and 66.66% p character. Why is this so? Because sp2 hybridization है हमारे पास. So obviously when you are going to apply the rule, 100% rule, so we can easily calculate that s का character कितना निकलेगा. It would be 33.33 and the remaining character is of p character. Okay, sp2 orbitals arrange themselves in a trigonal shape. अच्छा, why we are talking about sp2 hybridization? Because this is what I am going to explain, that how I am identifying that sp2 hybridization होगी. But this is the fixed point कि जब भी sp2 hybridization होती है तो जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगनल होती है, and the bond angle is 120 degree. It is fixed. To understand the idea of sp2 hybridization, we are going to consider some examples. So let's we start with the example first. We have this is the illustration, diagrammatically illustration, that this is the s orbital, these two are the p orbital, they are getting mixed and they will form these three kinds of sp2 hybridized orbital, and this is the trigonal shape which they will form. Trigonal shape like this, and this is the hybrid shape. As you can see, this and this trigonal shape इनकी आपने इस तरह से ये और ये अरेंज की हुई है, इस तरह से अरेंजमेंट होगी. दिस इज़ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए. आप ऐसे भी शो कर लें, आप ऐसे शो कर लें, आप लीनियर डायग्राम शो कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट विद द प्रॉपर एग्जांपल, एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. द फार्मूला ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज BF3, and let's we start. What is our central atom here? It is boron. So we will firstly write the ground state electronic configuration. As you can see, it is 2s2 2p1. This is the atomic number is 5, so its की configuration ऐसे ही होगी. But according to Hund's rule, if the electron are present in that form, as you can see they are present in that form, two electrons are present in s orbital and one electron is present in p orbital. So this electron, in the previous lecture I have explained कि अगर this ये वाला electron है जैसे which I am removing here from here, if this electron will get chance to shift from s orbital, so it will definitely try to shift from s orbital to p orbital, and it will definitely come here. Why? Because according to Hund's rule, electrons try to occupy the single spin, and according to Hund's rule ये हम लोगों ने लिखा है. जब हमने लिखा तो हमारे पास configuration as you can see ये हो गई. So now check how many s and how many p's are involved here.
इफ़ यू सी इट क्लियरली, हाउ मैनी एस आउटर मोस्ट देखेंगे तो हाउ मैनी एस एंड पीज आर इन्वॉल्व, 1 एस एंड 2 पी. सो दिस शोज़ कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन हो रही है, इट इज़ sp2. फाइन. सो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड विल गेट इट सेल्फ अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइगनल फैशन एंड बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री. एंड होगा क्या कि ये जो बोरॉन के ऑर्बिटल से ये मिक्स हुए और कितने टोटल ऑर्बिटल, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे, 3. और वो कौन कौन से होंगे, 1s2 तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, बाकी जो आपके 2s1 2p1 और 2y1 हैं ये मिक्स होंगे और ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लेंगे. एंड दिस pz विल ऑब्वियसली देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हेयर, सो इट विल बी एम्प्टी. Now how this boron trifluoride will be formed? This is the structure of boron trifluoride. Now check. Simple, boron is getting arranged, boron is arranging itself on the trigonal fashion. This is the trigonal fashion. जो छोटे loops हैं उनको आप show करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है. This is boron actual structure which is 120 degree. And what is attached with this boron? It is fluorine. Fluorine is not taking part in the hybridization. Fluorine will be in its original form. जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, फ्लोरीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि p ऑर्बिटल की फॉर्म में रहेगा और आपका जो बोरॉन है वो हाइब्रिडाइज्ड होगा. और जो आपके पास ये ओवरलैपिंग होगी वो आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे BF3 का. ठीक है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3. 120 डिग्री पे एंगल पे अरेंज हुआ है. ये जो आपके पास आई एम शोइंग विद रेड कलर, दिस पार्ट इज़ एक्चुअली बोरॉन which is a hybrid form, and this and these 3 are fluorines जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है. इनका अच्छा why I have arranged them like this, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है मैंने, बिकॉज फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5. एंड इफ़ वी आर राइटिंग द 2p5 ऑर्बिटल तो 2p5 ऑर्बिटल में एज वी नो कि 5p ऑर्बिटल में टोटल 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz. सो ये दो तो पेयर की फॉर्म है, जस्ट दिस pz इज़ इन अनपेयर्ड फॉर्म. सो दिस pz की शेप क्या होती है, pz की शेप ऐसी होती है डम्बल, तो इसलिए मैंने इसको pz को इस तरह से बनाया है. और बोरॉन तो आपका हाइब्रिड हुआ है तो वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स की शेप इस तरह से अरेंज हुई है. ठीक है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राईफ्लोराइड. Now this is the linear structure, linear arrangement, and this is the simple illustration. but जो structure है वो वही है जो मैंने आपको इस तरह से बोरॉन का बना के दिखाया है विद फ्लोरीन. आप लोगों ने इसी तरह से जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने BF3 का स्ट्रक्चर बनाना है. आई विल सजेस्ट कि यहाँ आप एक प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए BH3 का स्ट्रक्चर जो है वो बनाइए और मुझे ये भेजिएगा कि ये किस तरह से आपने बनाया है. ठीक है. लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल एंड वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल इट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, बट आई राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द sp hybridization and then in the last I am going to discuss the 3 structures together, ethane, ethene and ethine. Okay, let's we start with sp hybridization as it is explained in the sp2 hybridization that how many orbitals were involved there, 1s and 2p. But when it comes to the sp hybridization there is 1s and 1p orbital obviously, and they will get mixed and they will form 2 sp hybridized orbital. They produce sp hybrid orbital and will have a 50% s character and 50% p character. As we know the formula is sp, so 50-50 100% कैसे बनेगा, 50% ये होगा 50% ये होगा. sp orbitals arrange themselves in a trigonal, it's not trigonal, sorry, it's a mistake, it's not trigonal, it's a linear shape होती है इनकी, linear shape at an unequal at an equal distance from each other with a bond angle of 180. obviously when the thing is arranged on a linear fashion, एक लाइन सी आपने बनानी है तो एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल obviously 180 डिग्री ही अरेंज होगा. To understand the idea of sp hybridization we are going to consider some examples and let's we start with the example. and the example we have, सबसे पहले तो ये illustrations देख लें कि किस तरह से sp, this is the s, this is the p, they will get mixed and they will form these kind of 2 sp orbitals. sp orbitals इस तरह के दो इन्होंने बना लिए, एक ये है एक ये है. don't need to put these lines, ये वाली lines मत लगाइएगा because ये थोड़ा सा बस सिंपल उसको बनाने, इक्वल बनाने के लिए कोशिश करते हैं और कोई इनका रीज़न नहीं है. अच्छा, ये दो ऑर्बिटल बने और इन दोनों ने इस पैटर्न पर अरेंज होना है जो आपके सामने नज़र आ रहा है. कौन सा पैटर्न है, 180 डिग्री पर 2 sp ऑर्बिटल थे. अगर हम एक कार्बन की बात करें तो मतलब एक कार्बन का ये
एक sp ऑर्बिटल है और ये दूसरा sp ऑर्बिटल है, ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं। और ये छोटा वाला लूप आप शो करें ना करें, जैसे अगर यहाँ पर देखें तो इन्होंने शो नहीं किया, तो आप भी नहीं करें, कोई मसला नहीं है, ऐसे बना लें, दोनों तरीके ठीक हैं, फ़ाइन। अच्छा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आर जो भी सेंट्रल एटम है उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए, और उसके साथ जो भी चीज़ अटैच होगी वो आप यहाँ पर लगा देंगे। लेट्स वी सी कि हमारे पास एग्जांपल क्या है। वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड सेज के व्हाट इज़ योर सेंट्रल एटम, it is BeCl2, not 3. It is beryllium chloride BeCl2. Beryllium is the central atom obviously which is in minimum amount, minimum तादाद में जो होगा, that is our central atom. It contain first of all what is the electronic configuration in ground state, it is 1s2 2s2. 2s2 पे आपकी बात ख़त्म हो रही है। अगर हम इसको यूँ बना के देखते हैं तो 2s2 यही होगा। व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन्स कि यहाँ पर एक p ऑर्बिटल मौजूद है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सो एज़ पर हुंड्स रूल, बिकॉज इट इज़ अ 2s, इट इज़ अ 2p, so this electron from here will try to shift here, fine. And if it is trying to shift from here to here, so यहाँ ये इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑब्वियसली इस वाले इलेक्ट्रॉन की हमें अब ज़रूरत नहीं है। सो नाउ चेक how many s and how many p orbital electrons are getting involved here. So the answer is as you can see, the answer is clear. Here we have 1s, 2s के अंदर तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने s के, 1s and 1p. So overall the hybridization is sp. So in case of beryllium chloride the hybridization will be sp. So this is what the configuration written after excited state. In excited state boron mixes its 1s and 1p orbital to produce two identical sp two hybrid orbitals, and this is the hybrid orbital, दो sp hybridized orbital आपके पास बन जाएंगे। Now we will check the structure as we have seen कि आपके पास होता क्या है कि एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। ये वही जो छोटे वाले लूप हैं उनको आप लिखें ना लिखें, तो ये बेरिलियम है। यहाँ पर बीच में BE लिखा हुआ है, यू डोंट नीड टू वरी, लिखना है नहीं लिखना है, लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड, ना लिखें, जैसे मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने वो बेरिलियम के पास दो sp ऑर्बिटल थे, वो मैंने बना दिए। नाउ साइड में कौन लगाना है, साइड में वी हैव क्लोरीन, एंड इफ़ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज़, इफ़ आई राइट इट हेयर, इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. So this shows that p is not 6, it's 5. So only one electron from p orbital is unpaired, so it would be pz, ठीक है। इफ़ यू राइट इन दैट फॉर्म, मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देती हूँ जस्ट p5 का, तो यहाँ 1 2 3 4 एंड दिस 1 5। सो ये जो PZ है ये क्लोरीन का अनहाइब्रिडाइज्ड एयर है, सेम लाइक द फ्लोरीन केस। सो ये जो PZ है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा एज इट इज़ रिटन लाइक इन फॉर्म ऑफ क्लोरीन। सो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू राइट इट और नॉट, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिख रही, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। क्लोरीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, ये क्लोरीन की फॉर्म है, और ये जो मैं ओवरलैपिंग दिखा रही हूँ, दिस रेड पार्ट इज़ शोइंग द ओवरलैपिंग बिटवीन sp orbital of beryllium with pz orbital of chlorine. सही है, sp, this is the sp orbital, this is the sp orbital and this is the pz orbital, they are getting overlapped. Similarly goes with the second side. आपके पास जो blue part है वो sp part है और जो रेड पार्ट है वो pz है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, इट्स अप टू यू। जो मैंने बना के दिखाया है, मैं बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये बनाना कैसे है और आप लोग इसको बना सकें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड। Now comes the structure of ethene, structure of ethane and structure of ethine. So I'm going to start with any of the start कर लेते हैं। सबसे पहले चलें स्ट्रक्चर ऑफ इथीन से स्टार्ट कर लेते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ इथेन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास वो है, इथेन होता है तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट वन बाय वन एंड आई विल सजेस्ट के यहाँ स्लाइड उसकी इथेन वाली स्लाइड नहीं है, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर करके दिखा रही हूँ किस तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट इज़ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्ब। अच्छा, सबसे पहले तो पार्ट है क्या हमारे पास, इट इज़ इथेन, फाइन।
this one is ethane. Ethane formula is CH3 with CH3. This is the formula of ethane. And as you can see, each carbon has one bond formed between carbon, and the 3 bonds are with hydrogen. You will write the electronic configuration of one carbon, and one carbon electronic configuration will be written like this: 1s2, 2s2, 2p2. And if I write electronic configuration in this form, so it would be like this: 1 and this one is 2. And as we see, here is the one orbital, empty orbital present, so this electron from here will shift here. This is obvious, fine. So I'm shifting it with the red color so that you will understand कि यहाँ एक electron shift होके गया है, and obviously we will remove this part. Okay, that's what it is. It is the configuration of single electron. And suppose कीजिए कि this is the configuration of this electron. एक कार्बन की एक configuration बन रही है. Similarly, what about the second carbon? It will also be having the same configuration, and I am directly writing for excited state. ये आपके पास excited state आ रही है 1, 2 and this one 3. ठीक है. So all these both of these carbon will have this kind of electronic configuration. Firstly you will write in the ground state, and then you can mention it for the excited state. अब क्या होगा, because it is shown, यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं configurations, सॉरी यहाँ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस आ गई हैं. कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास शो कर रही हैं कि आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है. सो हम लोगों ने अब करना क्या है, हम लोगों ने कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशंस तो मेंशन कर दी हैं कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशंस ये होंगी. सो ठीक है, नाउ हम लोगों को बॉन्ड्स बनवाने हैं, बिकॉज़ अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर्स किए हैं वो ऐसे नहीं किए, वो सिंगल उसके अंदर थे, कोई दो चीज़ों के दरमियान बॉन्ड नहीं बन रहा था, दो कार्बन इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे. तो सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर एक बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड बन कौन सा रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड बन रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वो कार्बन कार्बन का है. तो इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड बनेगा. ठीक है, ओके फाइन. नाउ चेक हाउ मैनी, बाकी जो रिमेनिंग कार्बन के साथ हाइड्रोजन हैं वो कितने हैं, 3 हैं. तो इसका मतलब है कि 3, 1, 2, 3. These 3 electrons are going to be paired up with what? Hydrogen. And similarly for one carbon के साथ तो ये तीनों हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं. Similarly जो ये वाला कार्बन है, इसका एक बॉन्ड तो यहाँ इन दोनों ने आपस में बनाया हुआ है, वो तो ठीक है बना हुआ है. बाकी जो 3 बॉन्ड्स हैं वो किसके साथ बनेंगे, यहाँ कौन है, H, H and H. यही होगा. ऊपर भी हमारे पास 3 H होंगे जो कि यूँ होगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर टोटल डायरेक्टली बॉन्डिंग हो कैसे रही है, और डायरेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने एस के कितने पी के. हम सिंगल किसी एक कार्बन की बात करेंगे. नाउ चेक 1s एंड हाउ मैनी पीज हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन, 3. सो इट मीन्स इथेन, this ethane will be having sp3 hybridization. If this ethane will be having sp3 hybridization, so what would be the structure of sp3 hybridization? Obviously tetrahedral like this. And what tetrahedral structure is like, ये आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, और यहाँ आपके पास 3 कौन लग जाएंगे, H, H और H लग जाएगा. और सिमिलरली यहाँ पर भी 3 आपके पास कौन लग जाएंगे, हाइड्रोजन्स लग जाएंगे. ठीक है, ये आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट होगी. अच्छा, दिस इज़ द लीनियर डायग्राम, बट वी हैव टू ड्रॉ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिडाइज फॉर्म में बनाना है. और अगर हाइब्रिडाइज फॉर्म में अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइब्रिडाइज फॉर्म sp3 के लिए कुछ इस तरह की होती है. ठीक है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल कार्बन. सो सिमिलरली अगर एक कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल इस तरह से होगा, इफ़ यू रिमेंबर फॉर मीथेन. सो सिमिलरली फॉर सेकेंड कार्बन इट वुड बी सेम. 2 कार्बन्स के स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे टेट्राहेड्रल. सो होगा क्या, अब इनकी ओवरलैपिंग करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से दिखानी है. नाउ चेक, मैं आपको बना के दिखाती हूँ. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं. ठीक है. सो देखिए, दिस इज़ योर कार्बन. हॉरिजॉन्टल बना रही हूँ क्योंकि जगह ऐसी है. 1, 2, 3. अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो ये आपको टेट्राहेड्रल ही लगेगा. ठीक है. अच्छा, दिस इज़ द कार्बन, और ये आपके पास सपोज़ कीजिए एक CH3 आ गया, इसके साथ दूसरा CH3 को हमने लगाना है टेट्राहेड्रल फैशन पे. तो सबसे पहले हमें जो बॉन्ड बनाना है वो इस तरह से आपने शो करवाना है, यानी कि ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना दिया और ये आपने ओवरलैपिंग शो कर दी. ठीक है. आई एम शोइंग इट विद द शेडेड पार्ट. अब बाकी
ये तो आपके पास एक हो गया। अब आपके पास जो इस कार्बन के 3 हैं वो इस तरह से होंगे, ज़ाहिर है। और अब हमने यहाँ पर अटैच क्या करना है, कौन सी चीज़ अटैच होगी, अटैच कौन सी चीज़ करनी है, इट इज़ हाइड्रोजन। एंड इफ़ वी सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1s1। सो ऑल दीज s हाइड्रोजन विल बी हैविंग दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस हेयर एंड दिस, ये होगा। और ये जो है हम इसको शेड कर दें तो शेडेड पार्ट किस चीज़ को शो करेगा, द शेडेड पार्ट इज़ शोइंग व्हाट, ओवरलैपिंग। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, दैट इज़ हाउ यू ड्रॉ दिस। सही, इस तरह से आपने इसको बनाना होता है इथेन के स्ट्रक्चर को। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर आपने अगर पूछा जाए कि आपके पास बॉन्ड एंगल क्या है, तो बॉन्ड एंगल इनका होता है 109.5, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये तो आपके पास हो गया, कौन आ गया, ये आपके पास आ गया इथेन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर मैं स्लाइड्स के ऊपर समझाती हूँ आपको। हमारे पास एग्जांपल थी इथीन की, फॉर द सेकंड वी हैव एग्जांपल ऑफ इथीन। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव, फर्स्ट थिंग इज़ स्ट्रक्चर फार्मूला C2H4। C2H4 मीन्स के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, each carbon will be having 2 hydrogen, each carbon will be having 2 hydrogen, but the valency of carbon is not satisfied if we are not putting up this double bond here, so the valency is not satisfied, so it is mandatory for us to to write a double bond here। ये जो double bond है ये लगाना हमारे लिए must होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास, किस चीज़ का स्ट्रक्चर आ रहा है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ये है CH2। अब हम इसकी अगेन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जैसे मैंने आपको पीछे लिख के दिखाई थी, दिस इज़ 1s2, 2s2, 2p1। सिमिलरली इट वाज ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि हर जगह आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब आपके पास हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम इसको इस तरह से बना के अगर देखते हैं, ये एक कार्बन है और ये इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, और हर ऑर्बिटल के अंदर 1 2 3 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली जो दूसरा कार्बन होगा उसके पास भी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास। ठीक है, 1 2 3। अच्छा, सबसे पहले तो बॉन्ड्स बनाएंगे आप, बॉन्ड आप देखेंगे क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन अब निकालनी है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे है। तो सबसे पहले बॉन्ड देखें किसके दरमियान बन रहा है, इट इज़ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। वी आर गोइंग टू फाइंड द सिंगल बॉन्ड्स। पहला बॉन्ड कार्बन का ये बन रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे। डोंट चेक दिस डबल बॉन्ड राइट नाउ, जस्ट चेक सिंगल बॉन्ड। बाकी जो 2 बॉन्ड्स कार्बन बना रहा है, ये आपका जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन्स को लेके बैठा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास अगर आप टोटल डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स देखते हो, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो ओवरलैपिंग हो रही होती है वो बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन 2 थे, तो वो यहाँ पर ये px और py ने ले लिए, और जो आपका s ऑर्बिटल था वो क्या कर रहा है, वो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यानी कि एक हमारे पास यहाँ पर pz ऑर्बिटल मौजूद है जिसको कोई हाइड्रोजन नहीं मिला। जैसे कि इथेन के केस में हुआ था, हाइड्रोजन 3 थे तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाया था, बट इस केस में नहीं हो रहा क्योंकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है। तो ये जो pz ऑर्बिटल हैं 2, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डबल बॉन्ड विच इज़ वीक बॉन्ड, इट इज़ नॉट formed by the direct overlapping, and this is the weak force of attraction, and they are formed because they are formed by those orbitals which are not taking part in the hybridization, direct overlapping के अंदर participate नहीं करते। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो मेन समझना वो ये है। अच्छा, सो pz ऑर्बिटल यहाँ पर एक है जो कि अनहाइब्रिडाइज रह रहा है, तो बाकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितनी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, काउंट करें, दिस 1s एंड 2p। So it means कि structure of ethene, if we are talking about a structure of ethene, so here the hybridization would be sp2। ठीक है, sp2 hybridization होगी, this is the
answer. So in excited state, carbon mixes its 1s and 2p orbital to produce 3 identical sp2 hybridized orbital, and this is how they are going to get mixed, and this pz orbital will be unhybridized and will take part in the formation of double bond. but यहाँ हम उसको सिर्फ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे इस शेप वाले, 3 इस शेप वाले होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, तो वो मतलब ट्राइगोनल फैशन पे अरेंज होंगे, और एक जो होगा वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा। अपनी ओरिजिनल फॉर्म pz की क्या होती है, ये होती है, दोनों लूप्स इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ चेक द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। चेक, ये है आपका ट्राइगोनल फैशन। अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपका ट्राइगोनल फैशन है, और यहाँ पर इसके साथ जो 2 चीज़ें, ये आपके पास स्ट्रक्चर था इसका ना, ये यूँ लिखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये आपका एक सिंगल बॉन्ड है ये वाला, ठीक। और बाकी जो ये 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वेयर इज़ अ pz ऑर्बिटल। सो pz ऑर्बिटल का काम यहाँ आपको समझ में आएगा, ये देखिए, दिस इज़ ट्राइगोनल ट्राइगोनल ट्राइगोनल, दीज आर द सिग्मा बॉन्ड। ये आपके पास ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बन गए। अब आ जाइए, मैं कलर चेंज करती हूँ, कलर मैं ब्लैक ला रही हूँ, और मैं ब्लैक कलर क्यों ला रही हूँ, जस्ट टू शो pz ऑर्बिटल। दिस इज़ योर pz ऑर्बिटल। वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, वो कभी ऊपर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी नीचे से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यूँ आप इथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं एक दफ़ा आपको बना के भी दिखा देती हूँ इथीन का स्ट्रक्चर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको हम करते ऐसे हैं, देखिए, सी ट्राइगोनल फैशन था, ट्राइगोनल फैशन ऐसे होगा, तो यानी कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज इस फैशन पे होगा। ये एक कार्बन है और ये आपका दूसरा कार्बन है, ये आपके पास ओवरलैपिंग को शो कर रहा है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये तो बन गया। अब साथ में आपने अरेंज कौन करने थे, हाइड्रोजन्स, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, उनको हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल के साथ होगा, तो यहाँ हम कॉर्नर्स पे s ऑर्बिटल्स लगा देंगे। तो ये कौन है, ये आपके H हैं, ठीक है। आप H लिख दें, मर्ज़ी है, आप बेटर है आप H लिख दें, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp2s। sp2 कौन से थे, ये सारे sp2 हैं, ये दिस इज़ sp2, दिस इज़ sp2, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे ना, सिमिलरली गोज़ विद दिस वन। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी है, ये हाइड्रोजन s है, तो हम कहेंगे sp2s ओवरलैपिंग हो रही है। नाउ क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ pz ऑर्बिटल। तो pz ऑर्बिटल क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लगा होगा इस, ओ माई गॉड, आई हैव डिलीटेड द स्ट्रक्चर। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, 1 2 3, दिस वन। अच्छा, ये थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये मैं क्या बना रही हूँ। ये आपके पास स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया था, ये हाइड्रोजन्स थे, ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि हमने हाइड्रोजन इस तरह से लगाने हैं, एंड आई वॉज शोइंग द pz ऑर्बिटल, ठीक है। pz ऑर्बिटल आई सेड कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है इस फॉर्म में, और ये कभी ऊपर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी नीचे से अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ दे जस्ट अरेंज देमसेल्व्स, फाइन। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर इथीन स्ट्रक्चर। इथीन के ये, इनको मैं पूरा शेडेड कर देती हूँ। पूरा शेडेड किस चीज़ को शो कर रहा है, इट इज़ अ pz ऑर्बिटल, जो कि ये बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द pz ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है, लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है इथाइन का। और स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन अगर हम देखते हैं तो वो क्या होगा, सेम वैसे ही चलेगा। आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने देखना है कि उसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द इथाइन स्ट्रक्चर। इथाइन स्ट्रक्चर के लिए जब हम देखते हैं तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप तो खुद से यहाँ लेक्चर स्टॉप कीजिएगा और ख़ुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाने के लिए। अगर आपको पिछले 2 स्ट्रक्चर समझ में आए, फार्मूला इज़ दिस, इट मीन्स ईच कार्बन हैज़ जस्ट 1 हाइड्रोजन अटैच विद इटसेल्फ।
ठीक है, एक एक हाइड्रोजन अटैच है और एक एक बॉन्ड। अच्छा याद रखिए कि जो बॉन्ड होता है ना फर्स्ट, वो सिग्मा होता है, यानी कि जो ब्लैक कलर से मैं शो कर रही हूँ, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। बाकी जो 2 बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड्स हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी, कॉन्फ़िगरेशन आपने वही पैटर्न जो कार्बन का आप निकालते हैं वही निकालेंगे। ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरे वाले कार्बन के भी सेम वही रहते हैं, हम उनको भी इसी तरह से लिख सकते हैं 1 2 एंड दिस 1 3। नाउ स्टार्ट मिक्सिंग अप, स्टार्ट फॉर्मिंग द बॉन्ड। एक बॉन्ड तो आपका इस कार्बन के दरमियान बन गया जो मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया। बाकी इस कार्बन के साथ यहाँ कौन लगा दोगे, H, और इसी तरह नीचे वाले कार्बन के साथ भी कौन लगा दोगे, H। नाउ सी दो इधर यहाँ पर 1 एंड दिस 1 2, दिस 1 1, दिस 1 2, दे डोंट हैव एनी हाइड्रोजन। नाउ what they will do, they will not take part in hybridization now, they will be in the unhybridized form, this one py pz py pz। so if you check it here, how many double bond we have here, we have 2 double bonds, इसका पी वाई, इसका पी वाई, और इसका पी वाई, और इसका पी वाई, पी जेड और पी जेड, और पी वाई और पी वाई, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। तो ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे अब, ठीक है। हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस, सबसे पहले तो ये देख लें कि इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन मिक्सेस 1s एंड 1p, ऑब्वियसली 2 1, एक 1s और एक 1p आपस में मिक्स हो रहे हैं और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होगा, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। मैं फिर भी ड्रॉ करके भी दिखा दूँगी, लेकिन सबसे पहले तो देख लें कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो स्ट्रक्चर लीनियर होता है। हमने अभी पीछे देखा कि लीनियर स्ट्रक्चर में इस तरह से हम एक कार्बन का आपके पास स्ट्रक्चर ही होगा। अच्छा, ये एक कार्बन इस तरह से 2 ऑर्बिटल रखेगा अपने पास, जो दूसरा कार्बन होगा उसका भी तो सेम स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, कार्बन। दिस इज़ योर 1 कार्बन, ये आपका ये वाला कार्बन है और ये आपका ये वाला कार्बन है। इन दोनों कार्बन्स के पास क्या है, इन दोनों कार्बन्स के पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 2, तो ये 1 2 3 4, टोटल 2 कार्बन के 4 sp2 नहीं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। नाउ दिस कार्बन यहाँ पर कौन लगा दोगे आप कॉर्नर्स पे, H, जो कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स द मेन पार्ट, व्हाट इज़ द मेन पार्ट, योर पी वाई एंड पी जेड। पी वाई, आई एम गोइंग टू शो इट विद ब्लू साइन, इट इज़ इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट पी वाई एंड इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट पी वाई। सिमिलरली जो आपका पी जेड है उसको किसी और कलर से शो कर लें, उसको पर्पल कलर से शो कर लें, वो भी इधर ही मौजूद है इस तरह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। पी वाई को अट्रैक्ट कर रहा है, पी जेड को अट्रैक्ट कर रहा है, और इस तरह से ये कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड बना रहे हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज़ योर sp ऑर्बिटल, ये सारा, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, बीच में कार्बन लगाएं ना लगाएं मर्ज़ी आपकी, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये कार्बन के हैं, और कॉर्नर्स पे आपने हाइड्रोजन्स लगा दिए, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये आपका एक पी वाई कह दें, आपकी मर्ज़ी, आप पी वाई जिसको कहें, आपकी मर्ज़ी आप पी जेड जिसको कहें। ये आपका पी जेड है और इसको आप पी जेड कह लें। बस ये शो कीजिएगा कि जिसको पी जेड कह रहे हो उसकी अट्रैक्शन पी जेड के साथ शो करो, जिसको पी वाई कह रहे हो उसको उसकी अट्रैक्शन पी वाई के साथ शो करो। और ये डॉटेड लाइन पाई बॉन्ड को शो कर रही हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रही हैं, और साथ में ये शो कर रही हैं कि कभी ये ऊपर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कभी ये नीचे से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देती हूँ जल्दी से, ताकि आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें इथाइन की। जी, ये देखिए, दिस इज़ 1 कार्बन विच इज़ हैविंग sp ऑर्बिटल। सिमिलरली इट गोज़ विद द 2nd कार्बन विच इज़ हैविंग sp ऑर्बिटल, और इनके कॉर्नर्स पे ये आपके पास कार्बन का बॉन्ड हुआ, और इनके साथ आपने कौन लगाना था, हाइड्रोजन, वो मैं यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ। यहाँ आएगा हाइड्रोजन और यहाँ आएगा हाइड्रोजन, ये आप इधर H लगा दें या S लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, और इसको आप शेडेड पार्ट से शो कर दें, ठीक है। अब आ रहा है आपके पास कौन, वी हैव पी वाई इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वी हैव पी वाई इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, लेट वी शो इट विद द डॉटेड लाइन सो दैट वी विल से कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी ऊपर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी नीचे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और किसी नए कलर से हम इसको शो कर लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं। पिंक कलर इज़ फॉर
pz ऑर्बिटल। इसको मैं फुल शेड कर रही हूँ, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है और ये आपका रेड कलर था, ये देखिए, ठीक है, एक रेड है और एक पिंक है। तो ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में हर साल पूछी जाती हैं। प्रैक्टिस का गेम है सारा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।